Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our direct numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Foreign institutional investors pump in over 18,000 crore rupees into the Indian capital market so far in the month of January. And domestic mutual fund industry adds 72 lakh folios in 2020. विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया और देश के म्यूचुअल फंड उद्योग में वर्ष 2020 में 72 लाख नए निवेशक फोलियो जोड़े गए। लेते हैं आज की पहली खबर। खरीदारी का सिलसिला जारी रखते हुए विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया है। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने शेयरों में कुल 24,469 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन उन्होंने 1 जनवरी से 22 जनवरी की अवधि में ऋण बाजार से 6,013 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए, जिसके चलते इस दौरान एफपीआई द्वारा किया गया कुल शुद्ध निवेश 18,456 करोड़ रुपए रहा। विश्व भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने के कारण विदेशी फंडों का भारत में प्रवाह मजबूत बने रहने की आगे भी उम्मीद है। और अब हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। आर.एस. दहिया, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। हेलो जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम हल्की कर दीजिए और अपना सवाल पूछें। ओके। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, माय क्वेश्चन टू धीरेन्द्र जी, that is it the right decision to invest in some good small cap fund or in Tata Digital at the present time? Small cap funds are meant for a certain kind of investors who can withstand the big ups and downs, and it also requires a longer, staying power. So if you are going to invest for 7-8 years and you can withstand the big ups and downs, then only you should be investing in small cap, or else not. Dhirendra, just a follow-up question. When an investor has an outlook for that period of time, shouldn't they go in for debt-based funds like gilt-edged securities? Isn't that the objective or goal of the investor when selecting a fund with the mutual funds? No. Equity tends to give more return for a longer time frame. And my answer, particularly in relation to small cap, that is it an appropriate time? I was just explaining for whom the small cap fund is.
Fixed income funds are meant for, conservative investors who really they don't have to worry about the decline, the downside in a substantial way. So conservative investors should always go for debt funds only. Right. Let's take our next caller now. Anup Jani from Mumbai. Anup, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask a question to the expert. Hi. I wanted to know the downsides of mutual funds. I very well know the plus sides, but I really want to know what are the drawbacks of mutual funds. If you could shed some light on that, I would really appreciate. Thank you. Mutual fund, the first drawback is what the disclaimer you listen to very often. They are subject to market risk and they can go down in value. So with all the diversification or professional management or whatever, you don't eliminate the risk of so that first risk. It can go down in value very much in line with the market. The other is that it can be there is expense. There is a cost to managing a mutual fund. So assuming that a mutual fund is doing okay and its returns are not very substantial, but you incur the cost of the expense ratio, which you see on an annual basis, is the cost incurred on managing your money. So that's the second one. Then depending on which kind of fund you are investing, a small cap fund will have a different set of risk. Investing in a gilt fund carries a different risk. Investing in a gilt fund carries the risk that if interest rates go up, even gilt fund can go down in value. Small cap funds can witness big decline in value. It can lead to capital erosion for a prolonged period of time. Likewise, different category of corporate debt fund, they could be exposed to credit risk. If a company defaults on its debt, then the fund will suffer. So different kind of funds face different kind of risk in mutual funds. So be careful about the kind of fund you are investing in and the kind of risk that kind of fund is exposed to. आइए अब चलते हैं चेन्नई, जहां से हमारे अगले कॉलर विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं. विजय, आपका स्वागत है. सवाल पूछें. Good evening, Mr. Dhirendra. I have only a very simple question. The SBI Retirement Benefit Fund, which is under launch now, is there any age limit for entry level for people above 65? I think it is not publicized too much in the brochure or anywhere else. Can you throw some light on the entry age? I'm sorry, I'm not aware of it. It will be worth looking closely at this. I'm not aware of it. Sorry. Yeah, I'll just check the big. Dhirendra, just looking at the way the market is with domestic institutional investors booking profits, being the net sellers in the market both for December and January, how is the net asset value for those who are holding mutual fund units? Are they going in for dividend income from the units held, or are they also seeking to book profits from capital gains? No, the AMFI numbers which reveals that domestic investors are moderately, not very substantially, moderately pulling back from their equity investment. That is reflected in the AMFI numbers, which reflects, which actually reveals on a month-on-month basis whether the investors are putting more money or they are on a net basis they are withdrawing money. And the performance of mutual fund is a completely different story, which is dependent on the state of the market. As the market has gone up, so mutual funds have benefited. Mutual fund investors are witnessing substantial rise in the value of their investment, and that is why they are pulling out. Let's now go on to our next caller from Thane. We have Aditya online. Aditya, very warm welcome to you in Market Mantra. Please ask your question to the expert. Yes. My question is, I have actually two questions. The first is, the markets are creating new highs. So this is a time to invest in mutual funds, or are investors to stay away? And I want to say that, please don't cut my call. I don't have a radio. So my second question is that why the money flow rate is low in bond market and very high in equity market? Sorry, what is the second question? Why the equity market attracts more money than the bond market? No, that's not true. In fact, fixed income market is far bigger than equity market. But yes, your first question, is the market too high to invest? My honest answer is I don't know. Markets look reasonably well priced, but whether they are at their all-time high, if the market is at an all-time high,
and it goes up a little bit, it will achieve a new high. So in that sense, when you are very close to, for example, I'm at the all-time high of my age, and I can only be, every other day I am at my highest. Likewise in the market, if you are at your highest, then it goes up a little bit, it will remain high. Whether it's a good time to invest or not is a function of, whether market is expensive and whether the flow will continue. I'm not very sure about the, relative worth of the market or whether the market is cheap or expensive. Of course, market seems reasonably priced, but, the kind of flow that we are witnessing from FIIs in the equity market, that is unprecedented. And so that is why I don't know. धीरेन्द्र, इनफैक्ट अभी जो हमने न्यूज पढ़ी थी, अगर आप ब्रीफली बताएं कि जैसा आपने कहा इक्विटी बाजार में एफपीआईज बहुत निवेश कर रहे हैं, लेकिन डेट मार्केट से उन्होंने इनफैक्ट जनवरी में भी पैसा निकाला है, सो वो क्या कुछ इंडिकेशन दे रहा है उनकी प्रेफरेंस? जी हाँ, उसका तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि भारत में अभी ब्याज दरें इस स्तर पे है कि यहाँ से केवल बढ़ सकती हैं, और बढ़ने की स्थिति में डेट जो बॉन्ड्स हैं उनका दाम गिरता है। और पिछले महीने अगर आपने देखा होगा कि डेट फंड्स में गिरावट आई है, क्योंकि थोड़ी बहुत आशंका थी जो कि आरबीआई के मूव के वजह से डेट बाजार में या डेट बॉन्ड्स के दाम में गिरावट देखी गई, और इसकी उम्मीद की जा रही है कि अगर आर्थिक स्थिति अगर बेहतर होती है तो ब्याज दरें शायद अब घटने का दौर बंद हो जाएगा, ब्याज दरें थोड़ी भी बढ़ेंगी तो बॉन्ड में नुकसान होगा। इस वजह से डेट से पैसा निकल रहा है, इक्विटी में पैसा आ रहा है, क्योंकि भारतीय बाजार के बारे में बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। उसके अलावा ऐसे स्तर पे अगर बाजार में थोड़ा भी पैसा लगातार आता रहता है तो बाजार केवल बढ़ेगा ही। अगले कॉलर हैं नोएडा से एसपीएस जैन, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, सभी को नमस्कार, धीरेन्द्र जी को नमस्कार। 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 एक जनरल ये ओपिनियन है कि डेट फंड्स का एनएबी गिरता नहीं है, और इसी आधार पर मैंने एसबीआई कॉर्पोरेट फंड, जिसका 80% पैसा AA+ कंपनीज में लगता है, लेकिन पिछले एक महीने में इसकी वैल्यू में डाउनफॉल हुआ है। क्या मेरा धारणा सही है कि इसकी एनएबी गिरती नहीं है? जी हाँ, ये धारणा का आधार ये है कि आपने देखा होगा कि इक्विटी में जिस तरह की हम गिरावट देखते हैं उस तरह का गिरावट यहाँ पे भी नहीं देखा गया होगा। जरूर थोड़ी बहुत गिरावट होगी, हो सकती है, और खासकर कॉर्पोरेट डेट में नुकसान आपका परमानेंट नुकसान तभी होगा जब उस फंड का लगाया हुआ कोई बॉन्ड, वो कंपनी अगर डिफॉल्टर हो जाती है। वैसी स्थिति नहीं बनी है, और ये जो ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका हुई है जिसके वजह से बॉन्ड का दाम कम हुआ है, वही अभी दिखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इक्विटी की तरह 1-1.5 साल 2 साल 10-15%, 20% की गिरावट केवल बाजार के वजह से हो गया हो, ऐसी स्थिति नहीं बनती। Let's move on to our next caller. We are joined by Satyendra from Kolkata. Satyendra, very warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question. हेलो, नमस्कार धीरेन्द्र जी। नमस्कार। इससे पहले भी मेरी आपसे बात हो चुकी है। 2-3 सवाल है, बेसिक सवाल, इसका जवाब दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आईडीएफसी मल्टी कैप फंड और एसबीआई मल्टी मैग्नम फंड दोनों में कौन सा बेटर है? जी। दूसरा सवाल ये है कि ये है एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, ये दोनों में बेटर कौन सा है? मुझे तीसरा सवाल ये है कि इंडेक्स फंड के बारे में आपका क्या राय है? इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड, इन दोनों में बेटर कौन सा है? आईडीएफसी का मल्टी कैप या एसबीआई का मल्टी कैप दोनों अच्छे फंड है, और ये मेरे लिए बहुत ही ये डिलेमा का सिचुएशन है कि किसको बेहतर कहें, और भविष्य में किसका प्रदर्शन कैसा रहता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव रिटर्न देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि दोनों फंड इक्वली प्रॉमिसिंग है, एसबीआई थोड़ा सा ज्यादा हो। एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन वहां पे जिस तरह का कॉन्सेंट्रेशन है उसका असर या उसका खामियाजा कभी कभी उस फंड को भरना पड़ेगा। और इंडेक्स फंड का बड़ा बोलबाला है, बड़ा पैसा आ रहा है उसमें, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि भारत में अगर एक मल्टी कैप या स्मॉल कैप मिड कैप में जो जिस तरह का प्रदर्शन देखा जाता है, वैसी स्थिति में इंडेक्स फंड फिलहाल 1-2 साल के रिटर्न के हिसाब से इंडेक्स फंड बड़ा जबरदस्त रहा है, और किसी फंड के लिए उसको बीट कर पाना, और खासकर लार्ज कैप फंड को बीट कर पाना बड़ा मुश्किल रहा है। पर मुझे उम्मीद है कि एक आम निवेशक के लिए बेहतर डाइवर्सिफिकेशन,
सुपीरियर रिटर्न और वैसे अपॉर्चुनिटीज जो कि अदरवाइज लार्ज कैप फंड्स को उपलब्ध नहीं है, उसका असर उनके प्रदर्शन पर दिखेगा। तो लंबे समय के लिए लगातार निवेश के लिए मल्टी कैप फंड, जिसका कि इंडेक्स में कोई आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई जरिया नहीं है इन्वेस्ट करने का, उसमें जरूर करना चाहिए। आइए लेते हैं अगले कॉलर। काशीनाथ हैं चेन्नई से हमारे साथ। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। काशीनाथ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, शायद काशीनाथ जी के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिकेशन में। गौरव है अगले कॉलर गाजियाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। गौरव, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मार्केट मंत्री। गुड इवनिंग जी। सर, ये स्मॉल कैप फंड में हाई अल्फा की वजह से बहुत अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता है, ऐसा कहा जाता है। ये अल्फा क्या होता है और क्या इसका बेनिफिट मल्टी कैप में हम ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन मल्टी कैप फंड रादर देन गोइंग फॉर अ रिस्की स्मॉल कैप फंड? आपका और सम फंड हम सम 10-20% वी कैन कीप इन स्मॉल कैप फंड फॉर बेटर रिटर्न। अल्फा क्या होता है? मैं इसको साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर एक फंड उतना ही रिटर्न देता है, उतना ही रिस्क लेते हुए जितना कि इंडेक्स लेता है, तो उसका अल्फा 0 होगा। कम रिस्क लेकर के इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देना, ये अल्फा है। या रिस्क अनुपात में लिए हुए अगर एक फंड बेहतर रिटर्न देता है, अगर ज्यादा उतार चढ़ाव के बिना अगर बेहतर रिटर्न देता है, या उतार चढ़ाव अगर बराबर ही हो इंडेक्स के साथ और उससे बेहतर, तो ज्यादा जो रिटर्न है वो अल्फा कहा जाता है। स्मॉल कैप फंड 10-20% लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं, जरूर लगाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि स्मॉल कैप खासकर भारत में वो डाइवर्सिफिकेशन और म्यूचुअल फंड में लगाने का जो फायदा है, जिसमें कि म्यूचुअल, क्योंकि जब आप स्मॉल कैप सीधा लगाने जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत बाजार में रोज नई खबर आती है, छोटी कंपनियां जिसको इवैल्यूएट करने में बड़ा मुश्किल हो। म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करता है, कि आपको कूड़ा करकट खरीदने से बचाता है। और स्मॉल कैप में जब जबरदस्त रिटर्न मिला है इस उतार चढ़ाव के बावजूद, या कई बार 1-2 साल 3 साल के नुकसान के बावजूद, तो ये इसमें जरूर लगाना चाहिए। और मल्टी कैप का भी शायद वो जानना चाह रहे थे। हाँ, मल्टी कैप पे क्या अल्फा की उम्मीद करी जाए? बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से लार्ज कैप का बोलबाला रहा है, और खासकर 2-3 कंपनियों के जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से, तो लोगों के लिए थोड़ी लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है इसमें मानने में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल तक अगर जिस तरह एक आम निवेशक निवेश करता है, तो 5-7 साल के रिटर्न में मल्टी कैप का प्रदर्शन जरूर उभरेगा। और खासकर बाजार चूंकि अभी बहुत ही नैरो तरीके से ड्रिवन है, तो जैसे ये ब्रॉड बेस होगा, मुझे लगता है कि बड़े बड़े मल्टी कैप फंड जिसमें कि निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया से सुधरेगा। अगले कॉलर है अशोक मोदी नगर से। अशोक जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल ये है, अभी ना पीरामल ग्रुप ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस को टेक ओवर कर लिया, मर्जर हो गया। तो इसमें जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर है, कोई कह रहे उसमें उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मर्जर में कोई कह रहे हैं वो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। जी हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है क्योंकि वो डिलिस्ट होने वाला है, और शायद उसमें शेयर होल्डर गैप हो जाए। और जब भी कोई, क्योंकि ये जो सेटलमेंट हुआ है खासकर लेंडर्स के साथ, वहां पे लेंडर्स को जरूर मिलेगा, लेकिन इक्विटी होल्डर्स का शायद कुछ खास न मिले। चेन्नई से काशीनाथ फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ। काशीनाथ जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल धीरेन्द्र जी से ये है कि जो म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि जो डायरेक्ट स्टॉक में लगाता है, वो क्या करता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग करता है। ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर हमारे लिए कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है कि इसका बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। थैंक यू जी। जी हाँ, आमतौर पे आप जब शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको मुनाफा 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से निवेश करते हैं आप। एक शेयर खरीदते हैं और उसको बहुत दिनों तक आप इंतजार करते हैं और उसका दाम बढ़ता रहता है। दूसरा तरीका होता है कि आप निवेश करते हैं, दाम बढ़ जाता है, बेचते हैं, फिर नए खोज में लग जाते हैं जिसमें कि दोबारा से बढ़ेगा और फिर आप बेचेंगे। इसको आप प्रॉफिट बुकिंग कह रहे हैं। म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो यही करता है, और
उसका बड़ा भाग जो है, जैसे जैसे फंड बड़ा होता जाता है, बड़ा भाग जो है वो वैसी कंपनियों में लगा होता है जिसमें लगा करके उसके बढ़ने के लिए इंतजार किया जाता है। एक छोटा सा भाग होता है जिसमें कि लगाया जाता है, दाम बढ़ता है, बेचता है, अगर गिरावट होती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक दूसरा पार्ट है कि स्टॉप लॉस भी मानते हैं कि इससे ज्यादा गिरावट होगी तो आप बेच देंगे। तो एक छोटे से भाग अपने पोर्टफोलियो का आमतौर पे फंड मैनेजर यही करते हैं। Now we're joined by our next caller, Sachin from Mumbai. Sachin, a very warm welcome to you on Market Mantra. Please ask a question to the expert. सर, अभी एक कॉलर ने आपको एक्सचेंज फंड के बारे में पूछा था। मैंने 2-3 साल पहले रिलायंस ETF में पैसा इन्वेस्ट किए थे, वो अभी भी 3% नेगेटिव रिटर्न बता रहे हैं। ETF के बारे में हमारे पास कोई सवाल नहीं आया था। अच्छा, इंडेक्स फंड? हाँ, इंडेक्स फंड के बारे में आपने किस फंड में लगाया था? आप बताएंगे आपने किस फंड में लगाया था? शायद रिलायंस ये कह रहे थे। ऐसा संभव है कि बाजार में ऐसे समय में पैसा लगाया हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में अगर आपने पैसा लगाया और वो बिल्कुल ऐसे उच्चतम स्तर पे लगा दिया जिसके बाद बाजार में गिरावट हुई तो इंडेक्स फंड में भी आपका नुकसान होगा। लेकिन आमतौर पे चूंकि अभी इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर पे है तो मुझे बड़ी हैरानी होगी कि आपने कभी भी किसी इंडेक्स फंड में लगाया हो ETF के जरिए तो आज उसमें कैसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे अधिकतर इंडेक्स अभी अपने उच्चतम स्तर पे हैं। तो धीरेन्द्र जी, ETF में भी क्या एक लॉन्ग टर्म होराइजन होना जरूरी है, जैसे आप हमेशा इक्विटी फंड्स के लिए एडवाइज करते हैं? जी हाँ, ETF जो आपके इक्विटी ETF है, इक्विटी में क्योंकि वो आपका लगा हुआ पैसा इंडेक्स के जरिए, ETF जो इक्विटी के हैं वो आमतौर पर किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं और इक्विटी में लगने वाला सारा पैसा आपके लंबे समय का ही होना चाहिए। कम समय में यहाँ पे भारी गिरावट हो सकती है, केवल लंबे समय की अवधि में ही आप इक्विटी का रिस्क आप कम कर पाते हैं। Dhirendra, what about commodity-based exchange-traded funds, which are also mutual funds like precious metals, gold ETFs? What is your advice to investors? Yes, gold ETFs are very popular, and they are, they are available in large number, and I think it is a nice way of buying gold in the financial form. But I think it is gold has actually has really been able to withstand the whole crisis, and in times of uncertainty it appreciates. But at the same time, don't undermine the volatility of gold. We have seen there are years when gold has gone down by 10, 15%, 20%. It's not a one-way route. So, unlike equity or debt, it turns out to be, one should look at it as an insurance to an otherwise, market-linked financial portfolio which is invested in equity and debt. अब लेते हैं अगले कॉलर दिल्ली से FN प्रधान, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे को ये जानना था कि ये पूछना मैं अगले 3 साल के लिए कोई टैक्स सेविंग फंड बता पाएंगे आप? दो टैक्स सेविंग फंड जो अगले 3 साल के लिए इस प्रेजेंट मार्केट में ठीक रहे, जिसका मीडियम मतलब लो रिस्क हो, ज्यादा मतलब लॉस ना। जब आप टैक्स सेविंग फंड में लगाते हैं तो आपके लिए वो फंड आपका 3 साल के लिए लॉक्ड इन एनीवे हो जाता है और बड़े ढेर सारे टैक्स सेविंग फंड उपलब्ध हैं। अगर मुझे एक दो गिनाना हो तो एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जिसका कि बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, उसके अलावा DSP का टैक्स सेवर, इन्वेस्को का टैक्स सेविंग फंड, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। Dhirendra, how important is the union budget when it comes to the tax-saving fund, both for the fund house itself and for investors in that fund? Absolutely inconsequential, because over the years, budget has become less relevant because many big economic decisions actually come through the year. And if you look at what happened after post-pandemic, all the big incentives or all the moves were taken, and I don't think we were waiting for the budget for those announcements. Likewise, and budget now has become more of a narration of the government account, so to say. And also, we have seen great stability and if you recall, the big cut in the corporate tax rate happened without waiting for the budget. So in that sense, budget has lost its relevance in terms of the way it used to happen in old times, that
budget will go about making changes. And this ATC concession which has been available will apply for, most budget rulings actually or announcements become effective 1st April. So whatever we are doing now till 31st March applies. It doesn't really have an impact on all our, steps taken before that. Well, Dhirendra, do stay with us online while we read the second headline story for the benefit of our listeners on Market Mantra. Mutual fund industry in the country added 72 lakh folios last year in comparison to an addition of 68 lakh investor accounts in 2019. According to the Association of Mutual Funds in India, AMFI data, the number of folios with 45 fund houses rose to 9.4 crore at the end of December 2020 from 8.7 crore in December 2019, registering a gain of 72 lakh folios. The number of folios under equity segment rose 27 lakh to 6.5 crore in 2020 against 12.8 lakh added in the preceding year. Debt-oriented scheme folios count rose by 15.8 lakh to 86.7 lakh. Similarly, assets under management also surged 17% to 31 lakh crore rupees in December. In 2018, over 1.38 crore investor accounts were added, more than 1.36 crore in 2017, nearly 70 lakh in 2016 and close to 56 lakh in 2015. Folios are numbers designated to individual investor accounts. However, an investor can have multiple folios. The easiness in the registration process has also given an additional push for the mutual fund industry. The Aadhaar-based verifications, easy online payment through UPI or net banking have made the investment in mutual fund easy and convenient. Now we are joined by GD Parashar from Gujarat. Parashar जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है. सवाल पूछिए. सर जी नमस्कार. मार्केट मंत्र को जयंत जी को मेरा नमस्कार. नमस्कार. मेरा क्वेश्चन केवल एक है कि कोटक का एक नस्दाक है जिसका जो कल तुम्हारे 20 लास्ट डेट था वो कैसा मुझे सुना हम लोगों को बीच के जो लो इन्वेस्टर्स हैं तो क्या उनको देना चाहिए क्या? थैंक यू. एक बार जरा दोबारा दोहराएंगे कौन से फंड के बारे में आप कह रहे थे? मैं सुन नहीं पाया. सर ये कोटक का नस्दाक 100 जी ठीक है. कोटक का नैस्डैक 100 आपने देखा होगा कि एक पहले से एक नैस्डैक का ETF भारतीय निवेशकों के लिए उपलब्ध है. एक ETF के जरिए और एक इंडेक्स फंड के जरिए. एक फंड ऑफ फंड है जो कि उसी इंडेक्स में लगाता है. मुझे लगता है कि ये कोटक का जो ये फंड ऑफ फंड है जो कि नैस्डैक 100 में लगाएगा. नैस्डैक एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग इंडेक्स है खासकर भारतीय निवेशकों के लिए, क्योंकि वो बहुत दूसरी तरीके एक वो टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है जिसमें कि उन कंपनियों में आपका पैसा लगता है जिसमें कि अदरवाइज आप नहीं लगा पाते हैं. अगर इसके 4-5 जो टॉप होल्डिंग है अगर आप देखें तो अल्फाबेट जो कि गूगल का ओनर है या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, तो ये टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में पार्टिसिपेशन उसमें आपका पैसा लगता है. और मुझे ये अभी इनका इसमें भारी वृद्धि 3-4 साल से होने के बावजूद मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और खासकर भारतीय निवेशकों के लिए जहां पे हमारा सारा पैसा डोमेस्टिकली लगा हुआ है, आपका पैसा विदेश में लग पाता है और ये एक अच्छा व्हीकल साबित होगा. तो ये दूसरा ऐसा फंड होगा जो कि नैस्डैक को में इन्वेस्ट करेगा. Very briefly, Dhirendra, is it an arbitrage fund? No, it is a fund of fund and it will be investing in Nasdaq 100 stocks. There is a Nasdaq 100 index fund and this fund will be investing in that fund only. और चलते चलते बता दें अपने श्रोताओं को कि मध्य प्रदेश नागरिक केंद्रित विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक सुधार करने के लिए पूंजीगत परियोजनाओं के वास्ते अतिरिक्त धनराशि हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुधारों, व्यापार करने को सुगम बनाने संबंधी सुधारों, शहरी स्थानीय निकायों संबंधी सुधारों के लिए पूंजीगत खर्च के वास्ते राज्य को अतिरिक्त 660 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. राज्य ने विद्युत क्षेत्र सुधारों के एक भाग को भी पूरा कर लिया है. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है. हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे धीरेन्द्र, आप आए. धन्यवाद आपका. जी बहुत बहुत धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Foreign institutional investors pump in over 18,000 crore rupees into the Indian capital market so far in January. And domestic mutual fund industry adds 72 lakh folios in 2020. And that's all in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market